Welcome to my class, student. We are doing It So Happened, English It So Happened, and this is the story The Fight. We have completed the story. Now we are going to do the question answer of this story. So, question answer of this text, right, of this story. So we are going to do question answer of this story. And this is session 5. Now first comprehension check, page number 49. In what way is the forest pool different from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? तो राजपुताना डेजर्ट से कैसे डिफरेंट था उसका फॉरेस्ट पूल? द फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इनवाइटिंग. वो कह रहा था कि आओ मेरे ठंडे पानी में अब छलांग लो, मुझे एंजॉय करो. सो forest pool was clean, cold and inviting, whereas the Rajputana desert had sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. The other boy asked Ranji to explain himself. What did he expect Ranji to say? He expected Ranji to apologize to him and immediately leave the pool. दूसरा लड़का कौन था? द अदर बॉय, वो वॉरियर, उसका नाम क्या था हमें पता है अब, सूरज. तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी उम्मीद क्या थी कि रंजी जो है उससे माफी मांगेगा और वो इमीडिएटली पूल छोड़ देगा. Was he, in your opinion, right or wrong to ask this? He was wrong to ask this because the pool was in the forest and it was not his personal property. तो जो पूल है वो फॉरेस्ट में है, वो नेचर मेड है, फॉरेस्ट उसने खरीद नहीं रखा है. चूंकि वो वहां रोज जाता है, इट डजंट मीन कि पूल उसका है. तो उसने जो रंजी को कहा कि आई हैवंट इनवाइटेड यू, ये पूल मेरा है, आप यहाँ नहीं स्विम कर सकते हो, तो बिल्कुल ही गलत था. Between Ranji and the other boy, who is trying to start a quarrel? Give a reason for your answer. तो कौन लड़ाई स्टार्ट करना चाहता था? Between Ranji and the other boy was trying to start a quarrel. And what was the name of the other boy? सूरज. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो other boy सूरज, क्योंकि हमें अब उसका नाम पता है. सूरज was trying to start a quarrel. When Ranji saw him, he did not say anything. जब रंजी ने उसे देखा था, उसने कुछ नहीं कहा था, वो तो फ्रेंडली मैनर में उससे बात करना चाहता था. It was the other boy who asked Ranji to explain himself. वो जो लड़का था, जो दूसरा बॉय, जो सूरज था, वो रंजी से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि वो वहां क्या कर रहा है. Ranji was prepared to be friendly but was taken aback by the boy's hostile tone. He even asked the boy to come and swim with him. और वो ये भी चाहता था कि वो लड़का आए और उसके साथ स्विम करे. However, the boy said that it was his pool and started a fight by calling himself a warrior. लेकिन जो दूसरा बॉय था, जो सूरज था, उसने क्या किया, कहा कि पुल मेरा है और उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी. Then we will have to continue the fight, said the other. What made him say that? When even after a lot of fighting, Ranji refused to leave the pool, the other boy said that they would have to continue their fight. तो ये किसने कहा था? सूरज ने कहा था. तो कब? What made him say that? क्यों उसने ऐसा कहा? जब रंजी किसी भी तरीके से पूल नहीं छोड़ के जा रहा था, उसने खुद को फाइटर बोला और लड़ाई में भी उसने बराबर की टक्कर दी. तो फिर इस लड़के ने कहा, सूरज ने कहा कि हम ये लड़ाई कंटिन्यू करेंगे. That they would have to continue their fight. Did the fight continue? If not, why not? क्या fight continue रही? क्यों और क्यों नहीं? No, the fight did not continue. Fight continue नहीं थी. After they decided to continue the fight, neither of them took the initiative. उन लोगों में किसी ने भी ना आगे बढ़कर किसी ने भी फाइट कंटिन्यू नहीं की. Then the other boy said that they would continue the fight the next day. तो दूसरे लड़के ने कहा कि दूसरे दिन वो फाइट कंटिन्यू करेंगे. इफ रंजी डेयर टू कम बैक टू द पूल, यदि रंजी हिम्मत करके पूल पे फिर से आता है तो इस तरह से आप देख रहे हो हम लोग आंसर कैसे दे रहे हैं. नो, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू. आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट, नीदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव. राइट, वो लोग बहुत थक चुके थे. दे वर वेरी मच एग्जॉस्टेड, दे कुड बियरली स्पीक. वो दोनों बहुत थक चुके थे. Then the other boy said that they would continue the fight the next day.
तो दो लड़के ने कहा कल हम लड़ाई करेंगे यदि रंजी आता है, इफ रंजी डेयर टू कम बैक टू द पूल। नाउ पेज नंबर 53, व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। तो रंजी को क्या एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी अपने घर पर। एट होम रंजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूजेस दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म। अगर कोई बच्चा घर वापस आता है उतने सारे कट्स लेके, ब्रूजेस लेके जो हाथ पांव चेहरे पर है, तो ऑब्वियसली घर में लोग पूछते हैं भाई ऐसा कैसे हुआ। तो वो एक्सप्लेन करने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट टू हाइड द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन्वॉल्व इन अ फाइट। लेकिन उसकी चोट को देखकर पूरा ऑब्वियस था, क्लियर था कि वो बहुत ही वॉयलेंट फाइट करके आया है और बहुत ही ज्यादा लड़ाई बहुत ही भयानक थी। तभी उसकी मम्मा ने उसको बोला था कि आप दिन भर घर से बाहर नहीं जाना, आओ घर पर ही रहना। Ranji sees his adversary in the bazaar. What does he wish to do? When Ranji saw his adversary in the bazaar, he wished to turn away and look elsewhere. Then he wished to throw the lemonade bottle at his enemy. तो उस समय दो इम्पल्सेस उसके काम कर रहे थे। एक इम्पल्स ने क्या कहा रंजी को कि बॉटल उठाओ और अपने एडवर्सरी को पर फेंक दो। दूसरा क्या कर रहा था इम्पल्स कि चलो उस टर्न अवे हो जाओ, मत देखो उसकी तरफ, तो वो अपने आप वो चला जाएगा। तो ये दोनों विश उसके दिमाग में चल रहे थे। What does he actually do and why? लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया? He actually stood his ground and scolded at the other boy. उसने एक fierce look दिया, उसे बहुत ही गुर्राते हुए उसको देखा, fierce look दिया। He did not throw the lemonade bottle because he did not want to start a fight in the bazaar. उसने क्या किया? उसने लेमनेड बॉटल नहीं मारा क्योंकि वो बाजार में ही लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था। Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? Ranji left home on the second day rather unwillingly. जो रंजी था वो दूसरे दिन फाइट नहीं करना चाहता था, वो बार बार सोच रहा था भगवान कर वो वॉरियर जो है वो फाइट, वो चैलेंजेस भूल जाए, लेकिन उसको जाना था दूसरे दिन और वो बहुत ही अनिच्छा से गया, अनविलिंगली। हिज बॉडी स्टिल पेन्ड अगेन, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। येट ही कुड नॉट रिफ्यूज अ चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता था। टू गेन हिज रेस्पेक्ट ही हैड टू डिफाई हिज एनिमी, क्योंकि अगर वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक्नॉलेजमेंट होती कि वो हार चुका है, लेकिन उसे अपनी नजर में अपने आप को सम्मान देने के लिए उसको अपने एनिमी को हराना था। As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. जब तक वो लड़ाई करेगा तब तक ही वो अपने राइट को, जो पूल पर उसका राइट है, उसको साबित कर सकता है। तो इसीलिए वो अनविलिंगली से ही, लेकिन वो पूल की तरफ गया। Now page number 54. Who was the better swimmer? How do you know it? Ranji was the better swimmer when the other boy made fun of him by saying that he would not be able to swim across the pool. Ranji dived straight into the water and surfaced at the other end in a flash. तो जब रंजी बहुत ही अच्छा स्विमर था क्योंकि उसकी बॉडी फिट थी और वो स्विम बहुत बार कर चुका था, तो जब उसने कहा, सूरज ने उसको कहा क्या तुम स्विम करके या नहीं आ सकते, तो उसने अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उसने स्विम किया और तुरंत ही बिजली के एक जैसे बिजली कौंधती है सेकंड्स में वो वहां पर पहुंच गया स्विम करके। द बॉय वाज अमेज्ड एट हाउ वेल रंजी हैड डाइव। जो लड़का था वो बहुत ही अमेज्ड हो गया कि रंजी कितनी अच्छी तरह से उसने डाइव लिया, एंड लेटर एट हाउ ही हैड स्वम अंडर वाटर। और फिर वो क्यों और भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने अंडर वाटर बहुत अच्छी तैराकी की। आपको याद है वो उसके पीछे जाके खड़ा हुआ, वो सामने देख रहा था कि रंजी यहाँ से आएगा, लेकिन उसने अंडर वाटर ही एक सर्कल लिया और जाकर सूरज के पीछे आके खड़ा हो गया। He said that he did not know how to dive or swim underwater and asked Ranji to teach him both. तो उसने क्या किया, रंजी ने को बोला कि मुझे नहीं आता स्विम करना, मुझे नहीं आता डाइव करना, तो आप मुझे दोनों सिखा दो। Ranji's superiority over the other boy is obvious in the following. Yes, physical strength, good diving, his being a fighter, sense of humor, swimming underwater, making good point and willingness to help. तो इन सब पॉइंट्स में रंजी अपने सूरज से बेटर उसने प्रूफ किया। कैसे? फिजिकल स्ट्रेंथ, रंजी में काफी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ थी क्योंकि उसने
लड़ाई में दोनों का ड्रॉ हुआ था लड़ाई, उसने उसको झेला, उसके हर वॉर को झेला, उसने लड़ाई छोड़ी नहीं थी। और वो स्विम करने में भी एक फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, उसमें वो था। गुड डाइविंग, बहुत अच्छी डाइव करता था। हिज बीइंग अ फाइटर, वो बहुत अच्छा फाइटर था। और वो उसके शरीर पे इतनी चोटें लगी थी, फिर भी वो दूसरे दिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो गया और फाइट करने के लिए वो फिर से तैयार हो गया। तो ही इज अ गुड फाइटर। सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि उसने पूछा कि क्या तुम ये पूल खाली करने वाले, आर गोइंग टू एम्प्टी द पूल। वो हिज बीइंग अ फाइटर, वो बहुत अच्छा फाइटर है। वो दूसरे दिन वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दूसरे दिन भी वो वहां गया। उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, क्योंकि उसने उससे पूछा क्या तुम फिर से पानी खाली करना, डू यू वांट टू एम्प्टी द पूल, जब वो सूरज पानी से बाहर आया और उसके मुंह से जब उसने पानी निकाला। स्विमिंग अंडर वाटर, वो बहुत अच्छा अंडर वाटर स्विम करता है, क्योंकि वो सूरज के पीछे जाके खड़ा हो गया था। मेकिंग अ गुड पॉइंट, उसके पॉइंट्स काफी अच्छे होते थे। और वो विलिंगनेस टू हेल्प, वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वो सूरज से उसमें ज्यादा सुपीरियरिटी, ही सुपीरियर। तो आप वो देख रहे हो, उसमें विलिंगनेस टू हेल्प थी, वो लोगों की मदद करना चाहता था। हालांकि उसने सूरज ने उसको काफी चोटें पहुंचाई, फिर भी वो उसको स्विमिंग करना और डाइविंग सिखाना चाहता था। उसमें वो क्या करता था, उसमें व्हाट आर द रेलेवेंट फ्रेजेस, गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर एंड विलिंगनेस टू हेल्प। दीज आर द three things that makes him superior, right? What according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? Explain it as you have understood it. Now the two adversaries admire certain skills in each other. दोनों एक दूसरे के कोई किसी खासियत को वो पसंद कर रहे थे, स्किल, खूबी को, which they themselves lacked, जो कि उनमें नहीं थी। When the other boy saw how well Ranji dived and swam underwater, he forgot about the fight and asked him to teach him this skill. जब सूरज ने देखा, the other boy, सूरज ने देखा कि रंजी कितनी अच्छी डाइविंग करता है और अंडर वाटर इतनी अच्छी स्विमिंग करता है, तो वो पूरी लड़ाई भूल गया एंड आस्क्ड हिम टू टीच हिम दीज स्किल्स। उसने उसको कहा कि आप मुझे ये स्किल सिखा दो। Ranji's willingness to help the other boy made their friendship possible. और रंजी जो था वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता था, तो इससे क्या हुआ, दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो पॉसिबल हो पाई। Noticing Ranji's thin body, the other boy promised him that he would turn him into wrestler like himself. जब सूरज ने देखा रंजी बहुत दुबला पतला है, तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा, मेरे साथ तुम खाना खाना, हम लोग दूध पियेंगे और तुम भी मेरी तरह पहलवान बन जाओगे। As a result, in a matter of minutes, the adversaries turn into good friends. और इस तरह से दोनों adversaries बहुत अच्छे दोस्त बन गए। So, what have we learned today? We have learned how to write the answers of the questions that are there in the chapter. Go through the answers, write in, and practice it as it is, and enjoy the story. Hope you have enjoyed the story also. Don't fight with anyone. Please try to be friend with everyone whom you like, whom you want to be. And then please, if someone wants to be in fight with you, wants to fight with you, then try to make the person as your friend, because friendship lasts longer than enmity. The chapter comes to an end here. I will come in the next session with a new chapter. Till then, enjoy the chapter, go through the sessions, and I will come in the next session. Thank you.